Okay, recording started. So today is day 2, and we have already taken our very first step towards the goal that we are looking to achieve. So well begun is half done. So we are already in the midway now. So whatever we did in the last class, जो भी किया था, we'll just do a quick revision and then we will move forward, right? So let me just do one thing before we do it. Okay. Yeah. Sorry. So we'll just do a quick revision. So what exactly is Java? Who developed it? Come on, answer fast. I want each one of you to answer. Who James developed it? Gosling. It was James James Gosling. Gosling who James developed Gosling. it, right? James And where Gosling. what was it first developed? It was Sun developed in Sun Microsystems. Sun Microsystems. Sun Microsystems, and now Microsystems. presently it is with which company? Which Oracle. Oracle. corporation? Oracle Oracle. Corporation, right? It is a very simple programming language, widely used and well documented. And this is case sensitive. That is, each character, like if it is in capital letter, case, and then another one is in lower case, then these two are not considered the same, right? This is what was taught. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्लाइड. देन मूविंग ऑन टू द फीचर्स. तो इंपॉर्टेंट फीचर्स में मैंने आप लोगों को हाईलाइट कराया था वाज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, द अदर वन वाज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. वी studied platform independent in detail in the last class, and apart from that अगर आपको आंसर देना है in for interviews तो आप simple, secured, robust and portable, you can go with these answers. ठीक है, और ये बाकी और भी हैं जिनको आप बिल्कुल देख सकते हो. ठीक है, and we had learned why it is called platform independent. ठीक है, चलो then we learned exactly कि हमारा जो डॉट जावा फाइल होता है, जो डॉट जावा क्लास फाइल होता है, वो कैसे कन्वर्ट होता है. हाउ इट इज कन्वर्ट? फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड बाय द कंपाइलर इनटू व्हाट? Bytecode. इनटू जावा बाइट कोड. और ये ये बाइट कोड को मैं लेके कहीं पे भी जा सकता हूँ, विच मेक्स जावा पोर्टेबल, राइट? Yes. Yeah. ठीक है, और इस बाइट कोड को मैं कहीं पे ले जाके उस JVM. सिस्टम पे रन करूंगा जहां पे जेवीएम है. ठीक है, तो जहां पे जेवीएम है, विल जस्ट रन दिस बाइट कोड एंड दिस विल प्रोड्यूस आवर मशीन कोड एंड गिव अस द आउटपुट. ये हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो अगर हमसे डिवाइड कर देते हैं अपने सिस्टम पे, सो इट विल कम टू अराउंड, ये हो जाएगा आपका सिस्टम 1 पे आप कर सकते हो, एंड दिस विल वर्क ऑन सिस्टम 2, व्हिच मेक्स इट प्लेटफॉर्म Independent. इंडिपेंडेंट. ठीक है, देन वी आल्सो लर्न जेवीएम के बारे में. जेवीएम क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज जेवीएम? जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? Dependent. इट इज Dependent. Platform डिपेंडेंट. dependent. करेक्ट. Platform dependent. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैड कवर्ड इन आवर लास्ट सेशन, एंड आल्सो वी लुक्ड इनटू द बेसिक डायग्राम ऑफ हाउ एग्जैक्टली आवर जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम इज प्रेजेंट इन आवर सिस्टम. ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा जो लेबर क्लास है, हु वाज दैट? जेवीएम, हु इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर रनिंग आवर बाइट कोड. जो हमारा बाइट कोड है उसको रन करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? JVM. JVM. ठीक है, एंड व्हाट इज JRE? JRE कंसिस्ट ऑफ JVM प्लस सेट ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स. जो अंदर में डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होती है वो इसके पास होता है. और टूल्स किसके पास होता है? टूल्स किसके पास होता है? वो होता है JDK के पास. ये वाला देखो आप. JDK. ठीक है, JDK. तो JDK इज मेड अप ऑफ आपका डेवलपमेंट टूल्स प्लस JRE. ठीक है, एंड आपका JRE इज मेड अप ऑफ JVM प्लस सेट ऑफ And लाइब्रेरी set of फाइल्स एंड अदर library. फाइल्स. ओके, और JVM क्या है? JVM हमारा जावा वर्चुअल मशीन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल Platform फॉर, dependent. which is responsible for running our bytecode. ठीक है, this is all what we had done in the last class, and then we had just written a simple program जो हम लोगों ने लिखा था, public static void main करके. We were just printing a message. This is a different message, but we were just printing a message, right? Correct? Yes. Correct. So this was all about what we had recapitulated in the last class. ठीक है, तो अब बताओ यहाँ तक, if anybody is having any doubt, I can just take that up now, else we'll proceed further with the new topic. Is anybody having any doubt up till here? Yes, what will be the perfect definition for JVM? If you could like summarize in your own words, JVM and JRE both. Okay. So see, I'll just tell you frankly, nobody is going to ask you in any interview, first of all, कि what exactly is your JVM or what exactly is your JRE. Okay, because ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. एग्जैक्टली जो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज जावा. ठीक है, बट ये जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, आपको मैंने ये बताया था कि JRE, JVM और JDK क्या होता है, सो दैट इफ यू आर गोइंग समवेयर इन द मार्केट तो आप एटलीस्ट उसे बता पाओ कि होता क्या, एंड यू नो द वर्किंग, Yes. कि कैसे वर्क होता है उसका. Hmm. ठीक है, तो ये हो गया.
So let me just briefly tell you exactly. So I was very fascinated by one of the answers written by Prasanjit in the group. Hello, anybody saying anything? If not, can you all go on mute, please? Yeah. So JVM, actually one of the answers that I received was JVM stands for Java Virtual Machine, and because of it, any source code which has been compiled to bytecode can get executed to get the desired output of a Java program. This is something that can be said, and it is also like you can say Java stands for Java Virtual Machine. It is you can say platform dependent. So this is something that you can say if you want to answer someone. Okay, got it? Yes, thank you. Okay, no problem. Okay, so this was something that you can go ahead and tell. Okay, but from interview perspective, if you have to speak, what is Java? That is something that someone can ask you, to be honest. Okay, and that to person who is very elderly in the industry, and if he is interviewing you. Okay, so it is just 1 out of 100 person who's going to ask you what is Java. Okay, but you have to be prepared for that 1% as well. So ये था हमारा. Now moving to today's session, आज हमारा क्या है? आज है हमारे पास क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, डेटा टाइप, कीवर्ड्स एंड पैकेज. ओके, सो we'll cover some of the terms here, not all the terms here. So हमारे पास अभी remaining 40 minutes जो भी हैं, we'll be discussing on these things only, and then we will move further. Okay, so चलो, what exactly is okay, let me just open this. Okay, तो हमारा क्लास क्या होता है? Is anybody is having any rough idea what exactly is a class? Any one of you ever कभी college में पढ़ा कुछ? May I try? Class of a group of objects having similar features. Okay, can you explain it in a much simpler way? Multiple objects, multiple type of objects. Call it class. Class Okay. can be public, private, and protected. Okay, class can be public, private. Class is a group of Class is a elements which have blueprint. common properties and behaviors. Okay, In simple terms, it is just a category consisting of some different entities belonging to a particular having a same property. okay, that's good. Actually, whatever you all said somewhat sums to the same conclusion. Okay, so let me just brief for all those who don't know, and also to clear your concept on class and object, what exactly they are. I think that got open. Okay, we have it here. So let's come here and see. Okay, what exactly is a class? I'll tell you. Class क्या होता है? ठीक है? We'll discuss about class first. तो class exactly होता है हमारा sorry, class is nothing, okay, but ये एक imaginary होता है. इमेजिनरी होता है, ठीक है? पहले तो ये समझ लेते हैं कि इमेजिनरी होता है, ठीक है? तो इसकी अगर हमको डेफिनेशन की बात की जाए ना, तो मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बता दूं. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? क्लास का डेफिनेशन क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ क्लास. ठीक है? ये होता है. तो अब इस चीज को हम लोग एक समझते हैं कि एग्जैक्टली एज पर व्हाट आर अंडरस्टैंडिंग. देखो, वी कैन बाय हार्ट एनीथिंग एंड वी कैन डिलीवर इट टू समवन, राइट? बट अंडरस्टैंडिंग द मेन कॉन्सेप्ट इज वेरी मच नीडेड. ठीक है? तो यहां पे हमारे पास दो टर्म है, दैट इज ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट. ठीक है? एंड वन मोर थिंग दैट आई एडेड इज इमेजिनरी पार्ट. ठीक है? तो इमेजिनरी हमारे डेफिनेशन में नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस व्हाई इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. ठीक है? फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, उससे हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट. ठीक है? चलो, तो हैव यू हर्ड, एनी ऑफ यू हैव यू हर्ड अबाउट एनीथिंग एज ब्लूप्रिंट? कभी सुना है ब्लूप्रिंट के बारे में? ब्लूप्रिंट ऑफ एनीथिंग, हैव यू हर्ड? एनीवन? यस, व्हाट Building एग्जैक्टली plan. इट इज? ब्लूप्रिंट ऑफ Building plans. ओके, बिल्डिंग प्लान्स. ठीक है? तो चलो, ये बिल्कुल बहुत अच्छा है. ठीक है? इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑफ बिल्डिंग प्लान्स. ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, आई विल जस्ट टेल यू. ठीक है?
कि ये जो हमारा है, ठीक है, ब्लूप्रिंट, व्हाइट इज कॉल्ड इमेजिनरी, बिकॉज हमारा जो बिल्डिंग होता है ना, हमारा जो बिल्डिंग बनता है, ये देखो, ये जो बिल्डिंग बनता है, वी हैव अ फ्लोर मैप, राइट? फ्लोर मैप देखे हो? हैव यू पीपल सीन द फ्लोर मैप? ऐसा कुछ देखे हो? देखो, आई जस्ट शो दिस। ये ऐसा कुछ देखे हो घर बनने से पहले बनता है? हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन कि रूम ऐसा होगा, दिस विल बी द डोर, दिस विल बी द दिस विल बी योर बेडरूम, दिस विल बी योर बाथरूम, एंड दिस विल बी योर डेक, दिस विल बी योर गराज? ऐसा देखा है कुछ? देखा है? करेक्ट। तो ये जो होता है ना, ये बिल्डिंग का, तो दिस इज एक्चुअली क्लास, इसी को बोलते हैं ब्लूप्रिंट बोला जाता है, ठीक है? दिस इज ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग जो बनने वाली है उसका ब्लूप्रिंट है ये, ठीक है? समझ गए? ठीक है। तो अभी क्या है, ये देखो, ये क्या, किस बेसिस पे बना है? इट इज जस्ट अज्यूम्ड एंड क्रिएटेड, करेक्ट? ये तो बिल्डिंग तब तक कोई ब्रिक लगती नहीं है, उससे पहले बनता है ये, हाँ कि ना? हाँ। करेक्ट। ऑल ऑफ यू, आर यू फॉलोइंग? सब कोई फॉलो कर रहे हो? चलो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब बिल्डिंग बनती है तो ये जो हमारा फ्लोर मैप होता है, ठीक है, जो हमारा फ्लोर मैप होता है, ये बस एक इमेजिनरी बनता है, ठीक है? कि इसमें चलो ऐसा होगा, दिस विल हैव 2 बाथरूम्स, अगर 2 BHK है तो 2 रूम, 1 हॉल एंड किचन, एक हो जाता है नोशन, ठीक है? कि अगर 3 BHK है तो 3 रूम्स, ठीक है? तो उस कैटेगरी से हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी एक ड्राइंग बना लेते हैं अपने माइंड पे कि हाँ, ये बिल्डिंग का मेरा ब्लूप्रिंट है, दिस इज द प्लान, ठीक है? तो एनीथिंग दैट वी आर डूइंग ओवर हियर, ठीक है, हम लोग जिसको क्लास बनाते हैं, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट डजंट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, ओके? दैट डजंट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। वो क्या है? वो बस इमेजिनरी है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, ठीक है? टेम्पलेट होता है ना, जैसे हमारे पास देखना पावर पॉइंट बनाते हैं तो दे ऑलरेडी हैव 2, आपका ऊपर में टेक्स्ट डालो हेडिंग के लिए, एंड देन यू हैव सब टाइटल वाला टेक्स्ट, ठीक है? वो टेम्पलेट एक बना के आपको दे देते हैं, और यू कैन सेलेक्ट सम अदर टेम्पलेट्स एज वेल। तो वो क्या होता है कि वो बस एक इमेजिनरी चीज बनी है, जिसके बेसिस पे आप उसको वैसे पुट करके यू कैन क्रिएट समथिंग, राइट? हाँ कि ना? बताओ, हाँ कि ना? आर यू फॉलोइंग? ठीक है। तो यहाँ पे ये समझो कि जब ये बिल्डिंग बनती है ना, तो ये जो इमेजिनरी चीज है, ठीक है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है, दिस विल बी नथिंग बट योर क्लास, ठीक है? ये क्लास होगा तुम्हारा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग क्लास के बारे में, जिसको अभी थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट समझ लेने के बाद विल और क्लियर करते हैं इसे, ठीक है? तो क्लास क्या है, बस डेफिनेशन में याद रखना, क्लास इज अ, बोलो बोलो, Blueprint for creating objects. ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हमारा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट्स है, चलो, तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है? हमारा क्लास क्या था? इमेजिनरी था, राइट? क्लास क्या था? Imaginary. क्लास वाज इमेजिनरी। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर योर रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है? ये रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं, वो इमेजिनरी था, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। अब देखो, ये जो फ्लोर मैप बना था ना हमारा, ये फ्लोर मैप बना था, जो भी था, मतलब जो ऐसे ऐसे था आपका, ठीक है? आई एम जस्ट ड्राइंग इट रैंडमली, ठीक है? ये जो आपका फ्लोर मैप बना था, ये जो ऊपर बताया ना फ्लोर मैप बना है, ये जो क्लास बना था, क्लास बना था ना, हाँ कि ना? बोलो। हाँ। ठीक है, ये जो फ्लोर मैप बना था, इसके ऊपर, ठीक है, हम लोग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट विल बिकम योर ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि ये जो फ्लोर मैप है, दिस इज अ क्लास, और इसके ऊपर क्लास और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या क्रिएट होता है? इसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट जो बना है, द बिल्डिंग दैट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड, इसमें जो बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है? और देखो, मैंने एक वर्ड कहा आपसे यहाँ पे, रियल वर्ल्ड एंटिटी। देखो, आप बिल्डिंग को देख सकते हो, करेक्ट? आप बिल्डिंग को देख सकते हो, हाँ कि ना? हाँ। जो भी बिल्डिंग बनेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे आपके पास हाथ में पेन है, ठीक है? तो पेन क्या है?
पेन आपका ऑब्जेक्ट है वहां पे, ठीक है, ये समझ लो इस तरह से फिलहाल के लिए, ठीक है, समझ गए बात। चल, तो एनीथिंग दैट यू कैन सी, टच, फील, वो क्या हो जाता है, वो हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, समझ गए। और एनीथिंग दैट इज इमेजिनरी इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसे और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स के बारे में याद रखना दो चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, दैट हैज attributes and behavior of its class, ठीक है, that has attributes and behavior of its class, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज attributes and behaviors of its class। चलो, तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई जस्ट गिव यू सम एग्जाम्पल्स, यू जस्ट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। चलो, अच्छा बताओ फ्रूट क्या है, इफ आई से फ्रूट व्हाट इट इज, क्लास, फ्रूट क्या है बताओ। क्लास, फ्रूट इज अ क्लास, और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, एप्पल, मैंगो, इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ग्रेप, बनाना। ये क्या बोलते हो, सही है। किसी को समझ में नहीं आया ये चीज, ये बताओ, विल जस्ट क्लियर इट आउट। एनीबॉडी इज हैविंग ए डाउट, ये बताओ कि फ्रूट को आपने क्लास कह दिया एंड देन आपने एप्पल को कह दिया ऑब्जेक्ट, ये कैसे, करेक्ट, हाँ कि ना, डाउट्स है कि नहीं, हाँ बोलो। नो, सी यू ऑल आर पेइंग ओवर हियर, ओके, सो अपने रुपए का एक एक बिट मुझसे एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। आई एम हियर टू डिलीवर एवरीथिंग दैट आई हैव, तो अगर डाउट है तो बिल्कुल पूछना, यू आर पेइंग, डोंट फॉरगेट, ठीक है। तो बताओ, एनीबॉडी इज हैविंग डाउट कि फ्रूट कैसे हो गया क्लास। आई हैव डाउट सर। ओके, तो ये डाउट है, ठीक है। तो देखो फ्रूट क्या है, इफ यू जस्ट टेक दैट पर्टिकुलर वर्ड, ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर वो वर्ड के बारे में अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट वर्ड, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वो क्या है, वो कोई इमेजिनरी वर्ड है, राइट। अगर मैं आपके लिए ये लिख दूं, ठीक है, अगर मैं आपके लिए ये लिख दूं, इस वर्ड को आप जब फर्स्ट टाइम देखोगे तो क्या सोचोगे, ये कुछ हो सकता है, राइट, हो सकता है कि नहीं, आपको मीनिंग नहीं पता है, राइट, ये कुछ हो सकता है। तो दिस पर्टिकुलर वर्ड जस्ट हैज अ मीनिंग, इसका कुछ मीनिंग है जो हमको नहीं पता, मे बी सम अदर पर्सन को पता हो, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, दिस इज समथिंग इमेजिनरी, ये क्या है, ये एक इमेजिनरी वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग है, वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको कैसे पहचानते हैं, हम लोग अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा तब हम लोग पहचान पाएंगे, ठीक है। चलो एक और सिंपल से एग्जांपल लेते हैं टू क्लियर दिस, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, बताओ ये क्या है, क्लास, ह्यूमन बीइंग क्या है बताओ, क्लास, क्लास, क्लास क्यों है, इसे से ह्यूमन बीइंग से हमको कोई का समझ में नहीं आ रहा। इमेजिनरी अगर किसी का नाम रहता तो ऑब्जेक्ट हो जाता। ह्यूमन बीइंग क्या हो, कोई और आंसर करो। आमिर, आई थिंक यू जस्ट हैड गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम शाहिद, राइट, तो आपको पता है, तो आई जस्ट आस्क आमिर टू जस्ट स्टॉप फॉर सम टाइम एंड आई जस्ट लेट अदर्स टू आंसर। बताओ ह्यूमन बीइंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर लिविंग थिंग्स हम पकड़ते हैं तो लिविंग थिंग्स क्लास हो सकता है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट होगा। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू, ह्यूमन बीइंग को मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन देखो मेरा, मैंने क्या कहा था, रियल वर्ल्ड एंटिटी। ह्यूमन बीइंग को आप देख सकते हो, नहीं, हाँ,
हाँ देखो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, ये बताओ। देख सकते हैं। हाँ ह्यूमन बीइंग को देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को नहीं देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को नहीं देख सकते। आई कैन सी प्रसंजीत, समझ रहे हो? मैं प्रसंजीत को देख सकता हूँ, मैं शफाक को देख सकता हूँ, मैं जाकिया को देख सकता हूँ, मैं आमिर को देख सकता हूँ। करेक्ट, हाँ कि ना? ह्यूमन बीइंग को कौन देखा है? ह्यूमन बीइंग इज जस्ट अ वर्ड जिसका कुछ मीनिंग है, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रहा है अब? तो ह्यूमन बीइंग क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग इज अ क्लास जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है कि उसके पास आईज होंगे, आईज, हैंड, ठीक है, नोज, और फिर आपका एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि चलो वॉक कर सकता है, ईट कर सकता है, करेक्ट, ये सब कर सकता है ना ह्यूमन बीइंग। हो जाता, हाउ आर वी गोइंग टू कैटेगराइज कि ये एनिमल है और ये ह्यूमन बीइंग है? कुछ तो है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर कैटेगराइजिंग कि ये एनिमल है, समझ रहे हो? ठीक है, तो वो जो कैटेगराइजिंग फैक्टर है ना, तो ये सब हो जाते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। और ये जो वर्ब वाला पार्ट है ना, वॉक, ईट, स्लीप, जो वर्ब वाला पार्ट है, जो हम लोग करते हैं, काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, दोज बिकम्स योर बिहेवियर। वो बिहेवियर है, वो बिहेव कर रहा है वैसे, वॉक कर रहा है, ईट कर रहा है, स्लीप कर रहा है, ठीक है? तो ये हो जाता है उस पार्ट में। तो ह्यूमन बींग्स एग्जैक्टली क्या है, अब समझ गए ह्यूमन बींग्स क्या है? बताओ, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत भी? क्लास। हाँ पूरा क्लियर। ह्यूमन बीइंग इज नाउ अ क्लास, लेकिन प्रसंजीत कौन है? ऑब्जेक्ट। प्रसंजीत इज एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज प्रसंजीत क्या है? प्रसंजीत वहां से क्रिएट हुआ है। ह्यूमन बीइंग का ऊपर वाले ने क्या किया? ऊपर वाले ने बोला कि मेरा जो ह्यूमन बीइंग होगा उसके पास आईज होंगे, उसके पास नोज होंगे, उसके पास टंग होगा, टीथ होगा, हैंड होंगे, लेग्स होगा, ठीक है? तो उन्होंने ऐसा कहा तो जो भी जिसके पास भी ये सब चीजें हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कैटेगराइज क्या हो गया? एज अ ह्यूमन बीइंग, करेक्ट? करेक्ट। समझे? तो वैसे यहां पे देखो, फ्रूट क्या है? फ्रूट एग्जैक्टली आपका क्या है? फ्रूट यहाँ एग्जैक्टली एक वर्ड है, राइट? कोई एक वर्ड है जिसके अंदर कौन आता है? एप्पल को हम देख सकते हैं, मैंगो को देख सकते हैं, ग्रेप को हम देख सकते हैं, करेक्ट, हाँ कि ना? जिसको टच फील कर सकते हैं। नाउ आर यू एबल टू रिलेट माई क्या नाम है, डेफिनेशन विद द कॉन्सेप्ट, Yes. राइट? आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये होता है कि फ्रूट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, और ये सब क्या है, ठीक है? चलो, विल जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ few more examples, ठीक है, just to have अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। I just want all of you to answer, ठीक है? आपको क्या समझ में आया, जो भी आया just go ahead and answer, ठीक है? चलो, now suppose I am using phones, right? तो चलो, मेरे पास हो गया ये सैमसंग मोबाइल फोन है, ठीक है? तो सैमसंग, और यहाँ पे हो गया एप्पल, और फिर यहाँ पे हो गया आपका, और क्या क्या होता है यार, रेडमी, ठीक है, और आपका रियलमी। चलो, अब बताओ ये सब क्या है? सैमसंग क्या है, एप्पल क्या है, रेडमी क्या है, रियलमी क्या है? मैं फोन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सैमसंग क्या है? सैमसंग क्लास है। एप्पल क्या है? क्लास। चलो, ये सारे क्लास है। ऑब्जेक्ट। अच्छा शारिक का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट है। और कोई ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में? चलो, विल जस्ट टेक अ वोट, बताओ किसको किसको लगता है कि ऑब्जेक्ट है? रियलमी, रेडमी? है। Phone is a class, Samsung and all are object. ओके, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, आई एम जस्ट टेकिंग अकाउंट यार, बताओ कि कितना लग रहा है। चलो, आई एम जस्ट टेकिंग अकाउंट कि कौन कौन है, ठीक है, कि क्लास। चलो बताओ कौन कौन बोलता है क्लास? मैं क्लास बोल सकी। दो लोग क्लास बोल रहे हैं, क्लास 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 ओके, तीन लोग क्लास बोल रहे हैं। प्रसन्नजीत? क्लास क्लास ओके, एवरीवन इज सेइंग क्लास। चलो, फिर मुझे एक्सेप्ट आमिर से, क्योंकि आमिर को ये कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया गया था, ठीक है? तो आई जस्ट आस्क अदर्स कि बताओ कि क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट, बताओ। Object. मॉडल होगा ना सैमसंग। आईफोन 13, आईफोन करेक्ट, जैसे आईफोन हो गया, ये आप हो गया ना आपका 13, 14। आप लोग आईफोन का 14, 13 को देख, एप्पल इज जस्ट अ नेम, राइट? आप लोग कौन सा मॉडल देख पाते हो? 14, 13, सैमसंग का कौन सा, जो भी तुम्हारा
C6, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, ये है आपका नोट 10, ठीक है। उसके बाद फिर रियलमी का आपका 8i, जो भी है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग अ राइट, मतलब एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ ठीक है। क्लियर है? अब क्लियर है कि नहीं है, बताओ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। चलो। तो ये हमारे एंड से हो गया एग्जैक्टली, ठीक है, कि क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब क्लियर है सबको? बताओ, कॉन्फिडेंटली बोलो, क्लियर है या Yes. नहीं? हाँ 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 हाँ। ओके, तो दिस वाज समथिंग, एनीबॉडी इज आस्किंग एनीथिंग? ओके, तो एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच और फील, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता है? Object. दोज बिकम्स योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कोई भी चीज जो मतलब इमेजिनरी, इट इज जस्ट अ नेम दैट वी हैव गिवन, तो उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो दैट बिकम्स योर क्लास, करेक्ट। तो ये Yes. हमारा हो गया बेसिक सा डेफिनेशन क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, एंड वी जस्ट गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, हाउ टू डिस्टिंग्विश कि क्या होता है, ठीक है। और याद रखना है, ऑब्जेक्ट्स हमेशा किसके बनते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर हमेशा बनते हैं क्लास के। जैसे ह्यूमन बीइंग क्लास है, तो हम लोग जो उसके ऑब्जेक्ट हैं, अगर एनिमल क्लास होता तो उसके ऑब्जेक्ट्स अलग होते हैं, करेक्ट। करेक्ट। आ रही है बात समझ में? तो हमेशा याद रखना, हर क्लास का अपना ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। फॉर सम टाइम नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उस पर हम लोग थोड़े बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग जस्ट इतना समझ जाओ आप एग्जैक्टली कि सैमसंग, और मतलब जो जिस तरह से बताया गया आपको कि कौन क्या है, ठीक है। विल जस्ट डू अ क्विक रिवीजन टुमारो, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो एज वेल, ऑन थर्सडे, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर विद दैट, ठीक है। ये बस अभी कॉन्सेप्ट के लिए समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलो, नाउ मूविंग टू द थर्ड थिंग, जो कि हमारा वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल जो नाम सुन के क्या लगता है, जल्दी बताओ। बाय द टाइम यू आर आंसरिंग, आई जस्ट पेस्ट दिस इन द ग्रुप चैट। सॉरी, वेरी जिसमें वेरिएशन होता है, it's जिसके varies, वैल्यू फिक्स नहीं it's not होते हैं. constant. करेक्ट। एनीथिंग विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, जिसमें क्या होता है, कुछ वेरिएशन या उसके चेंजेस होते रहते हैं, करेक्ट। लेट मी पुट दिस इन ग्रुप एंड देन वी विल कंटिन्यू, राइट। This one is done. So हमारे एंड से यही है, ठीक है, कि इसको कैसे करना है, वी विल सी। चलो, तो अभी क्या है हमारा, वी आर स्टडिंग अबाउट आपका वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड जावा में वेरिएबल्स का क्या मतलब है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग ना क्या करेंगे, देखो वेरिएबल्स में क्या है आपका, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज जस्ट अ नेम, ठीक है, जस्ट अ नेम, ये समझ लो, जो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारे मेमोरी जो होता है ना, हमारे कंप्यूटर का जो मेमोरी है, ठीक है, तो वो उस जगह पे वो अपने एक उसको पहचानने के लिए एक नाम दे देता है। लाइक हम लोग के पास भी नाम है ना, इन क्लास, इफ वी आर सिटिंग इन अ क्लास, हाउ विल आई रिकॉग्नाइज कौन क्या है, ठीक है। कौन ओसामा है एंड कौन यहाँ पे आसिफ है, या कौन यहाँ पे आपका शफाक है, कैसे पता चलेगा ये चीज, ठीक है। तो ये पता करने का तरीका क्या है, ये पता तभी चलेगा व्हेन दे आर गिवन अ नेम, राइट। होना चाहिए ना नाम, हाँ कि ना, बताओ, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो वेरिएबल्स वही काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमारा नाम कांस्टेंट वाला नाम नहीं है। जैसे आज, जैसे मान लो एक का नाम आमिर है, तो हम ऐसा नहीं है कि उसी बंदे का नाम कल कहीं और जाके बोले अरे उसका नाम कुछ और है, ठीक है। एक होता है ना, वो फ्रॉड वाला नहीं, स्मगलर वाला हिसाब से नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये वेरिएबल जो है ये फ्रॉड वाले के हिसाब से काम करता है। तो एक ही चीज का नाम मतलब जो है, ठीक है, एक ही जो जगह है, इसके अंदर का क्या होता है, हमारा कंटेंट चेंज होते रहता है। ये जो कंटेंट है इसका, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो, ठीक है, मैंने एक जगह बनाया जिसका नाम मैंने क्या दिया, ए। क्या नाम दिया मैंने? ए। ए दिया, ठीक है। और ए को मैंने कहा कि राइट नाउ यू हैव 5, ठीक है, आपके अंदर कौन है, 5 है, ठीक है। फिर थोड़ी देर हुआ कि मुझे फिर मन किया नहीं, अब ए के अंदर कुछ और रखना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए के अंदर भाई तुम 6 को रखो, ठीक है। तो जब हम ए को बोलते हैं 5, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है ए की, हाँ कि ना, बताओ। हाँ। वैल्यूज हाँ. चेंज हो रही है, तो जब भी वैल्यूज चेंज होती है दैट बिकम्स योर वेरिएबल। तो ए जो है आपका, ये क्या बन जाता है, दिस इज योर वेरिएबल। ए क्या है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है।
तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हम लोग कभी भी कुछ भी करते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टोर एनीथिंग थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ द प्रोग्राम, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, हम लोग अगर कोई चीज स्टोर करना है तो वी डू इट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। हम लोग कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। with the help of variables. Okay, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। I want Sorry, each one sorry. of you to answer, ऐसा नहीं है। हाँ प्लीज, if somebody is asking anything, go ahead please. ये वेरिएबल कैसे करते हैं ये नहीं समझा मैं। वेरिएबल I'll tell you कैसे करते हैं, ठीक है। बस ये समझ लो कि ये जैसे कोई भी एक चीज के नाम, ठीक है, इफ दिस इज एनी स्पेस इन मेमोरी, मुझे मेमोरी में अगर एक भी जगह बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे एक नाम दे के एक जगह बना लूंगा, ठीक है। एक नाम देके उसे जगह बनाना पड़ता है, समझ गए बात? हाँ तो ये बेसिकली होता क्या है हमारा, ये हमारा उस चीज को स्टोर करके रखता है। जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो उस चीज को स्टोर करके रखेगा, उस वैल्यू को होल्ड करके अपने पास रखता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वी चेंज इट, हम लोग जब तक चेंज नहीं करते हैं तब तक वो उस वैल्यू को स्टोर करके रखेगा अपने पास, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टोर करता है? ये मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। हाँ तो अब एनीवन आस्किंग समथिंग? यूजर इनपुट के अलावा और कोई भी वेरिएबल होता है क्या जावा में? यूजर इनपुट के अलावा मतलब सी, यूजर इनपुट के अलावा एनीथिंग यू कैन, आप जो यहाँ पे बना रहे हो ना, यहाँ पे जैसे अगर आप कोई भी जगह बनाते हो मेमोरी में, ठीक है, इफ यू आर नॉट मेकिंग इट एज अ कांस्टेंट, अगर आप उसको स्पेसिफिकली कांस्टेंट नहीं बनाते हो तो वो बेसिकली आपका सिर्फ वेरिएबल ही होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को, अगर आप जावा में लेते हो, अगर आप उसकी मेमोरी सेट करते हो तो वो आपका वेरिएबल ही होता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर यूजिंग द वर्ड कांस्टेंट। अगर आप उसको कांस्टेंट नहीं बना रहे हो तो, ठीक है। तो कांस्टेंट हम लोग बेसिकली बनाते ही नहीं है। सॉरी, एनीबॉडी इज आस्किंग एनीथिंग? Okay, I think there was someone was raising his hand. MD Hasan, yeah, Hasan, go ahead, please. You have any question? Okay, so this is what it is. I'll just request each one of you to please go on mute. Okay. सो ये क्या होता है यहाँ पे आपका एग्जैक्टली ये जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, इट जस्ट हैज अ स्पेस इन द मेमोरी, एक मेमोरी में आपका स्पेस बना लेता है जो तब तक रहता है जब तक प्रोग्राम चलती है, ठीक है। और प्रोग्राम खत्म, उसके बाद फिर ये गार्बेज में कलेक्ट हो जाता है। तो ये आपको अभी नहीं समझना है गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो बस आपको ये समझना है कि मेमोरी में अगर हमको कोई भी चीज रखना है, इफ आई वांट टू सेव एनीथिंग इन द मेमोरी, व्हाट विल आई यूज? आई विल यूज अ वेरिएबल। व्हाट विल आई यूज? व्हाट विल आई यूज? वेरिएबल। आई विल यूज अ वेरिएबल, ठीक है। तो जावा में क्या बोलता है एग्जैक्टली? I'll show you a program as well, ठीक है। हमारे पास जब लास्ट के 20 मिनट्स बचेंगे, we'll look at a program जिसमें हम लोग वेरिएबल को यूज भी करेंगे, ठीक है। बट जावा में इसको लिखने का कुछ तरीका है, ठीक है। देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो व्हाट इज द वे? द वे इज दिस, ठीक है। जो नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं हम लोग एग्जैक्टली, कि हमारा नेमिंग कन्वेंशन क्या है इस चीज के लिए, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे क्या, a variable name can consist of capital letters A से Z। क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है बताओ? It can consist of capital letters, ठीक है, लोअर केस लेटर्स A से Z, ठीक है, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स दोनों हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं 0 से 9 तक, ठीक है। एंड देन टू स्पेशल कैरेक्टर्स, दैट इज अंडरस्कोर एंड द अनदर वन इज डॉलर साइन, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर दो ही यूज कर सकते हैं, व्हाट आर दोस? अंडरस्कोर डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये तो हम लोग को बता दिया कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो व्हाट ऑल वी कैन यूज? वी कैन यूज आपका कैपिटल ए से कैपिटल जेड, वी कैन यूज कैपिटल ए से कैपिटल जेड एनीथिंग, we can use small a से small z anything, we can use from 0 to 9 anything, and from special characters we have only underscore जो नीचे वाला होता है हाइफन के, ठीक है, उसको अंडरस्कोर बोलते हैं, अंडरस्कोर, एंड देन योर अनदर थिंग इज डॉलर साइन, ठीक है। तो ये चार चीज ही यूज कर सकते हैं जस्ट टू गिव आवर नेम। जैसे मैंने यहाँ ए दिया है, आई कैन यूज डॉलर ए, ठीक है, यहाँ पे है मैं ऐसे अंडरस्कोर ए कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपका कैपिटल ए कर सकते हैं, यहाँ पे डॉलर ए है, यहाँ पे फिर 0 लगा सकते हैं इफ आई वांट टू, ठीक है।
यहाँ पे आप 9 लगा सकते हो, यहाँ पे आप 6 लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप नेम दे सकते हो, ठीक है, समझ गए हाँ कि ना? Yes. ठीक है, हाँ लेकिन दीज आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, ठीक है, कि हम लोग देने के लिए, बट करना क्या नहीं है अब देखो, ठीक है। अब क्या क्या नहीं करना है, द फर्स्ट लेटर मस्ट बी, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है हमारा क्या है, नंबर्स नहीं हो सकता है, वी कैनॉट यूज नंबर्स, ठीक है। ऐसा हम कहीं पे नहीं दे सकते हैं 6_A या 6A, फर्स्ट कैरेक्टर जो है मेरे नेम का वो नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ फर्स्ट कैरेक्टर कैनॉट बी अ नंबर, ठीक है। ब्लैंक स्पेसेस कैनॉट बी यूज्ड इन द वेरिएबल नेम, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लिख लिए अपना, ठीक है, एक मतलब एक बॉक्स बनाए उसके अंदर आप उसका नाम दिए ऐसे शकील स्पेस अहमद, ठीक है, ऐसा नहीं देना। अगर आपको देना भी है ऐसा, अगर सेपरेट आउट करना है तो व्हाट यू कैन यूज, अंडरस्कोर, ठीक अंडरस्कोर है। तो अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो या बीच में डॉलर साइन यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट हैव अ स्पेस इन बिटवीन, ठीक है। तो याद रखना कभी भी, हम इसीलिए बार बार बोलते हैं, लास्ट टाइम इवन व्हेन आई वाज आस्किंग यू टू क्रिएट अ वर्क स्पेस, आई वाज आस्किंग यू टू अवॉइड स्पेसेस इन बिटवीन, राइट। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जावा के प्रोग्राम्स में वेन एवर यू आर डूइंग सम अदर टास्क एज वेल, तो वहां पे इशू आता है, ठीक है, कभी कभी स्पेस के चलते वो इशू क्रिएट करता है, ठीक है। तो वाई टू एक्चुअली मतलब फोकस ऑन समथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी, तो इसीलिए कन्वेंशन हमेशा स्टार्टिंग से ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो नेमिंग कन्वेंशन हो, चाहे अभी हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज से ऐसे ही नाम देंगे जो कि हम लोग इंडस्ट्री में यूज करेंगे, ठीक है, दैट शुड एक्चुअली बी अंडरस्टूड बाय एनीवन, ठीक है। तो वो चीज के बारे में बात करेंगे। चलो, तो ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता है और डिजिट के साथ वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, जावा कीवर्ड्स कैनॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, ठीक है। जावा में कुछ कीवर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि इफ, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग देम, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट है देखो, वी विल बी डिस्कसिंग डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स एज वेल। तो जब ये कीवर्ड्स पढ़ेंगे तो ये सब आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जिसको आपको यूज नहीं करना है नाम में देने के लिए, ठीक है। तो चलो, तो ये चीज कर सकते हैं, जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। देयर आर सम अदर कीवर्ड्स एज वेल, ये सब कीवर्ड्स एक्चुअली, ठीक है, दीज आर योर कीवर्ड्स, यू कैन नॉट यूज देम फॉर नेमिंग योर वेरिएबल, समझ गए बात। तो नेम ऐसे भी कभी भी देना है ना, जस्ट कीप इन माइंड कि यार कुछ भी लिख रहे हैं, जस्ट गिव अ सेंसिबल नेम, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपको कन्वेंशन याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ये याद रखो कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, एंड अदर थिंग्स वी कैन गो अहेड एंड डू, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल एंड आपका जो दूसरा चीज था दैट वाज द नेमिंग कन्वेंशन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या कवर किया, वी कवर्ड क्लासेस, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल एंड द नेमिंग कन्वेंशन रिलेटेड टू इट, करेक्ट। यहां तक किसी कोई डाउट? इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट, लेट मी No. जस्ट चेक, ओके। तो शफाक, एनी डाउट्स? No, no, thank you. आमिर, No, thank you. प्रसन्नजीत, No, no doubt. तानिया, एनी डाउट्स? No. No, no. Okay, Shakil, anything from you? नथिंग Thank you. Okay, so we have more people. If anybody is having doubt, they can just simply raise their hand, okay, and I'll just try to get back and answer them. Okay, so moving on with the program part. जैसा कि आज हम लोगों ने वेरिएबल्स देख लिया है, तो विल जस्ट ट्राई टू सी एग्जैक्टली वेरिएबल्स के साथ काम कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो आई विल जस्ट मूविंग टू आर Eclipse, ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूं। दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट आर प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई आई डिडंट ओपन इट इन ऑन पर्पस, कि पहले से अगर ओपन कर दूंगा तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि फिर से वर्कस्पेस बनाना है या नहीं। सी, आई एम इन दैट वेरी सेम वर्कस्पेस जो मेरा था, बैच जनवरी वर्कस्पेस, द वन दैट आई क्रिएटेड इन द लास्ट क्लास, दैट इज ऑन संडे, ठीक है। तो उस क्लास में जो क्रिएट किया था, बिल्कुल सेम वर्कस्पेस को मैं बस लॉन्च कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। I've just launched it, it will get open now. So by the time it gets open, we'll just try to take the screenshot of this one and paste it in the group so that you people can revise. I think till here we have done it.
Okay, I think that got open. Let me see. Yeah. So our Eclipse is open. See, this was the last program that we had actually done it in the our previous class. And अभी क्या करेंगे? What exactly we'll do? I'll just close this. इसे close कर रहा हूँ, ठीक है? Again I'm clicking on this arrow, जो साइड में arrow, इस पे जा रहा हूँ. SRC मैंने एक बेसिक प्रोग्राम बना के बनाया था. अभी हम लोग क्योंकि वेरिएबल पे काम कर रहे हैं तो we'll just create one, ठीक है? ये क्रिएट करेंगे. New and then I will first create a package. हम एक पैकेज बना लेते हैं कि वेरिएबल्स वाला है, ठीक है? तो इसे कर लेते हैं वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल्स प्रोग्राम्स, ठीक है? ये हो गया. और ये बोल रहा है डिस्करेज है, तो विल जस्ट यूज स्मॉल लेटर्स, ठीक है? पैकेज का नाम स्मॉल लेटर्स विल यूज एंड विल जस्ट डू फिनिश. ये वेरिएबल्स बन गया. अब वेरिएबल्स वाले में राइट क्लिक एंड देन न्यू एंड देन आर क्लास, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे हम लोग? हम लोग जस्ट देखेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस विथ वेरिएबल्स लिख लेते हैं. प्रैक्टिस विथ वेरिएबल्स. देखो हमारा अभी क्या है ना, अभी हमारा कुछ भी नाम हम दे रहे हैं बिकॉज क्लास का नाम अभी हमें मैटर नहीं करता है, बट गोइंग फॉरवर्ड विल डू समथिंग, ठीक है? तो ऐसा अभी भी नाम ऐसा है कि हम लोग को पता चल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द प्रोग्राम. करेक्ट? हाँ कि ना? पता चल रहा है, देखिए ना कि क्या हो रहा है. हाँ. ठीक है? तो नाम हमेशा ऐसा ही देना है. देखो होता क्या इंडस्ट्री में, आई टेल यू, कि जब आप ऑफिस में कहीं पे ज्वाइन करते हो, राइट, तो फिर अगर आप छोड़कर जाते हो तो आपके रिप्लेसमेंट में जो आया, ठीक है, या फिर आप कहीं नई कंपनी में गए, मतलब किसी के रिप्लेसमेंट बन के, ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए ना भाई ये क्या हो रहा है इस काम में. तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग को नेम एक ऐसा दिया जाता है कि कोई भी बंदा उसको पढ़ के समझ जाए कि इसमें हो क्या रहा है. तो प्रैक्टिस विथ वेरिएबल्स, तो इसमें समझ में आ रहा है बेसिकली कि हाँ कुछ वेरिएबल रिलेटेड हो रहा है, एक हल्का सा भी एक हिंट मिल जाता है, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा हम लोग नाम एकदम वैसा ही रखना चाहिए कि रिलेटेबल हो, कि कोई भी पढ़े तो उसे समझ में आ जाए, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? कम ऑन से, क्या लिखना है? स्टैटिक वॉइड मेन. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args lm. string args and then your brackets, right? ये हो गया. एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज एंड यहाँ पे हम आ गए अंदर, ठीक है? तो मैंने कहा था वेरिएबल्स, ठीक है? तो जावा क्या है ना, जावा देखो, जावा है बहुत स्मार्ट, ठीक है? जावा बहुत स्मार्ट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जावा को हम लोग को सिर्फ बताना पड़ता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है? तो जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो डेटा टाइप है, जो हमारा डेटा टाइप है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, वी विल बी कवरिंग ऑन थर्सडे. डेटा टाइप जो होता है, ठीक है? तो अभी मैं आपको सिर्फ 2 डेटा टाइप बता दे रहा हूं और बाकी के जो 6 है रिमेनिंग वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अपार्ट फ्रॉम योर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सॉरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है? तो चलो तो यहाँ पे याद रखो, जो नंबर है मुझे देना है ना, कभी भी नंबर, नॉट डेसिमल नंबर, ठीक है? डेसिमल नंबर को मत देना अभी, ठीक है? सिर्फ जो नॉर्मल नंबर हम लोग देते हैं तो उसका जो टाइप होता है वो होता है इंटीजर टाइप. क्या होता है उसका टाइप? क्या होता है बताओ? इंटीजर टाइप, ठीक है? और जो हम लोग नाम देते हैं ना, नाम या सेंटेंस या कुछ भी देते हैं, तो उसका टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग टाइप होता है. क्या होता है? स्ट्रिंग टाइप. ठीक है, स्ट्रिंग टाइप. चलो, तो सबसे पहले अभी मैं क्या करता हूं हमको एक मेमोरी में कहीं पे कुछ जगह चाहिए, ठीक है? तो मुझे कुछ जगह चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट वाले प्रोग्राम को फिर से एक बार करते हैं, ठीक है? system डॉट आउट डॉट println, ठीक है? हम लोग से लास्ट वाले प्रोग्राम को फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग नए वाले इसके साथ जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज लिखते हैं, हाय माई नेम इज फैजान, ठीक है? चलो, ये हो गया और मैंने लास्ट में फुल स्टॉप दे दिया, कंट्रोल एस. अगर मैं इसे रन करूंगा तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? क्या होगा बताओ? Hi, my name is Faizan. Hi, my name is Faizan. करेक्ट, ये हमारा आउटपुट होगा. तो लेट्स सी आ रहा है या नहीं. देखो ये आ गया, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा आ गया, ये देखो, ठीक है? हाय माय नेम इज फैजान, करेक्ट? करेक्ट. यहाँ पे बिल्कुल हम लोग अगर सेम मैसेज प्रिंट करना है तो वी कैन डू इट, ठीक है? अब देखो मैंने क्या कहा, मैं अगर मान लो मुझे अब यहाँ पे अपना फैजान नाम हटा के मुझे यहाँ पे किसी और का लिखना है, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ शफाक, ठीक है? मैं ऐसे यहाँ शफाक लिख दिया, ठीक है? चलो, तो मुझे बार बार कोड को हैम्पर करना पड़ता है, करेक्ट? कोड को टच करना पड़ता है, राइट? हाँ कि ना? नहीं समझा.
ये कोड पार्ट है ना, कि कोड को मैं टच कर रहा हूं। हाँ ठीक है, तो अब क्या है ये चीज देखो, जैसे मैं एक और चीज कर लेता हूं, ठीक है, एक और लाइन लिख लेता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, एंड इनसाइड दिस आई एम राइटिंग, ठीक है, हाय माय नेम इज शफाक एंड शफाक इज मान लेते हैं 23, ठीक है, शफाक प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, शफाक 23 years old, मुझे पता नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग इट रैंडमली, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, चलो नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड देन, चलो ये क्या हो गया, हाय माय नेम इज शफाक, शफाक इज 23 years old, ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, ठीक है, तो अभी क्या है, अगर मान लो मुझे ये बाय चांस मुझे ये लिखना था किसी और के लिए, सपोज इट वाज सपोज टू बी फैजान, तो मुझे चेंजेस कहाँ कहाँ करने पड़ेंगे, यहाँ पे फैजान, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने शफाक लिख दिया, इट शुड हैव बीन फैजान, ठीक है, फैजान, ठीक है, तो मुझे क्या 2 जगह चेंजेस करने पड़े, हाँ कि ना, Yes. ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को अगर प्रिंट करने जाऊं, तो इफ यू सी कि मैंने 2 चेंजेस किए हैं, इफ आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिंट दिस, तो ये आपको 2 चेंजेस 2 जगह ही दिखेंगे, ठीक है, देखो ये जगह, ठीक है, फैजान एंड फैजान, तो ये मान लो ऐसे करके ये 5 या 10 जगह यूज हुआ है, तो आई हैव टू चेंज एट ऑल द प्लेसेस, करेक्ट, हाँ कि ना, करेक्ट, तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए, ठीक है, कि जहां पे भी कर रहे हैं तो वहां के लिए हमको 10 बार चेंज करना पड़े, तो इंस्टेड, तो ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, तो वेरिएबल में क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि कोई वर्ड लेंगे, सेंटेंस लेंगे, तो उसका टाइप क्या लेंगे, टाइप क्या लेंगे, स्ट्रिंग कहा था, ठीक है, तो मैंने जो कहा था मैं बता दे रहा हूँ, इंटीजर, इंटीजर जो होता है आई एम राइटिंग इट शॉर्ट, क्योंकि जावा इसको शॉर्ट में पढ़ता है, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स नॉट डेसिमल वाले, ठीक है, नॉन डेसिमल लिख दे रहे हैं हम, नॉन डेसिमल, ठीक है, ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, दैट इज कमेंट, अगर आपको कभी भी कमेंट डालना है तो आप डबल स्लैश डाल सकते हो, ठीक है, डबल स्लैश डाल दो, ये आपका कोड रीड नहीं होता है, ये आपका रीड नहीं करेगा इस लाइन को, ठीक है, तो नंबर नॉन डेसिमल जो भी है आपका, ये हो जाएगा आपका मतलब इंटीजर टाइप, ठीक है, तो जिसको इंट लिख लिया, ठीक है, और एक और हम लिख ले रहे हैं, डबल स्लैश डाले तो ये वाला रीड नहीं होगा, याद रखना, ये कंप्यूटर रीड नहीं करता है डबल लाइन वाले को, ठीक है, और अगर मैं स्ट्रिंग टाइप लिखता हूं तो हमारा क्या हो जाता है, एनी वर्ड और सेंटेंस, ठीक है, एनी वर्ड और सेंटेंस, सेंटेंस मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो चलो अच्छा, कभी भी आपको कोई स्ट्रिंग का एस बड़ा है क्योंकि स्ट्रिंग क्लास है एस विल बी इसलिए। कैपिटल, एस विल बी कैपिटल, हाँ हाँ बोलो, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास है जावा में इसलिए एस स्ट्रिंग बड़ा इज है। अ क्लास, करेक्ट, स्ट्रिंग इज अ क्लास, ठीक है, स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा, ठीक है, और इंटीजर का इंट छोटा है, वी विल आल्सो डिस्कस एग्जैक्टली, जब हम रैपर क्लास की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो तब हम लोग को पता चलेगा कि इसका इंट छोटा क्यों है और आगे बड़ा क्यों करना है हम लोग को, ठीक है, कैन यू गो ऑन म्यूट प्लीज, ओके, सो ये हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आई हैव टू चेंज द नेम, ठीक है, जैसे ये नेम चेंज करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये नेम क्या है, नेम इज अ वर्ड है, तो वर्ड को कौन सा टाइप लिखेंगे, स्ट्रिंग, String. STRING, स्ट्रिंग, ठीक है, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, आई एम गिविंग नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ दे देता हूँ अभी, चलो शकील, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नेम, ठीक है, ये शकील नाम दे दिया मैंने, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू शकील, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, विल जस्ट पुट हियर, आपका ये जो नेम है, नेम वाले को हटा के ये नेम वाला डाल देंगे, ठीक है, देखो अभी कोई भी चेंजेस नहीं किया है, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये एज इट इज ये सेम चीज प्रिंट होगी, ठीक है, देखो मैं रन करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ फैजानी वाला प्रिंट होगा, अभी अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ एक वेरिएबल में शकील को स्टोर किया है, ठीक है, देखो ये देखो अभी जो प्रिंट हुआ, हाय माय नेम इज फैजान, फैजान इज 23 years old, करेक्ट, यही है अभी, ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोगों ने शकील को मेमोरी में स्टोर किया है, हम लोगों ने क्या किया अभी तक, शकील को सिर्फ मेमोरी में स्टोर किया है, ठीक है, तो वो अभी मेमोरी में है, बट वो यूज तो नहीं किया, तो उसको यूज करेंगे, यूज कैसे करेंगे, तो ये फैजान की जगह हम लोग क्या करेंगे, नेम देंगे, ठीक है तो अब देखो इसे लिखना कैसे है, ठीक है, देखो जो भी हमको मैसेज प्रिंट करना होता है, ठीक है, वट एवर मैसेज वी वांट टू प्रिंट, हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है,
और जब भी कभी वेरिएबल यूज करना है तो इसके आगे पीछे प्लस लगा लो, ठीक है, प्लस लगा के वेरिएबल का नाम लिख दो, ठीक है, प्लस नेम, ठीक है, ये हो गया। आगे और पीछे भी मैंने कहा था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये हो गया, ये हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम प्लस, ठीक है, ये देखो आगे और पीछे। ये जब आपका लास्ट में होगा ना, अगर आपका वेरिएबल लास्ट में है तो आपको साथ में ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर स्टार्टिंग में है तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लगाएंगे तो एरर नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे लगाएंगे तो ये एरर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे तो मतलब नहीं देना है, ठीक है। आगे अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो आगे लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप प्लस मत दो, और यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप इसे एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन अगर कभी भी आता है तो आगे और पीछे दोनों तरफ प्लस लगाना है। क्या लगाना आगे और पीछे? प्लस। देखो मेरा लास्ट वाला एग्जांपल मैं अगर आपको शो करूं, जो आउटपुट ऑलरेडी आया था, अभी रन नहीं किया मैंने इस प्रोग्राम को, ठीक है। शकील वाला जो पार्ट है मैंने उसे रन नहीं किया अभी, ये मेरा पुराना वाला ही रिपोर्ट है, ठीक है। कल जस्ट शो यू, ये देखो फैजान के बाद फुल स्टॉप है, दिख रहा है फुल स्टॉप आपको? ये हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो फैजान के बाद भी कुछ है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी नेम के बाद फिर एक फुल स्टॉप है, एंड फुल स्टॉप कैसे देंगे हम? फुल स्टॉप को तुमको हार्ड कोड करना होगा, करेक्ट, हाँ कि ना? करना होगा ना। तो उसको डालने के लिए हम लोग प्लस डालेंगे एंड देन फिर इन्वर्टेड कॉमा और उसके अंदर बस फुल स्टॉप, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, हाँ कि ना? Yes. ठीक है। और नेम हमारा लास्ट में तो है नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा फुल स्टॉप है, तो इसीलिए अब नेम जब बीच में आ गया तो नेम के आगे भी प्लस और नेम के पीछे भी प्लस, तो जो भी वेरिएबल होता है उसके आगे भी प्लस उसके पीछे भी प्लस। क्लियर है? इज इट क्लियर, हाँ कि ना? Yes. Yes. ठीक है। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। अब मैंने सेव कर दिया इसे, अब रन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली क्या आ रहा है हमारा, तो रन करते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, ये देखो आउटपुट क्या है, माई नेम इज शकील, शकील इज 23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आ गया। तो अगर ये 10 जगह चेंजेस होते हैं तो हम लोग को कितना, कहाँ पे चेंज करना है बताओ? एक जगह, एक जगह करना है, करेक्ट। जैसे मान लो ये इसी लाइन को मैं और भी प्रिंट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड आई एम प्रिंटिंग इट जस्ट बिलो दिस, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। मान लो इतनी जगह, अगर मैं प्रीवियस वाला मेथड फॉलो करता तो मुझे कितनी बार करना पड़ता? 8 बार करना पड़ता है चेंजेस, हाँ कि ना? Yes. ठीक है। तो व्हाट वी डू इज वी स्टोर द वैल्यू, जो भी हमको वैल्यू चाहिए हम लोग उसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उसको यहाँ पे एज इट इज प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल में क्या है, जैसे अभी शकील है, ठीक है, अभी वैल्यू शकील है तो इसीलिए इसका नाम वेरिएबल रखा है कि अभी शकील है। अभी नेक्स्ट टाइम मान लो इफ आई वांट टू डू सानिया, तो सानिया का हो जाएगा। देखो मेरे क्लास में सारे स्टूडेंट्स के एज सेम हो जा रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, देखो आ गया, सानिया इज 23 ईयर्स ओल्ड, हाय माय नेम इज सानिया, सानिया इज 23 ईयर्स ओल्ड, भाई, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे मैंने सानिया का लिया, या किसी के लिए भी आपको लेना है। तो चलो अभी लाइव एग्जांपल सोचते हैं हम लोग कि कहाँ पे ये यूज हो सकता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं जब हम लोग कार्ड डालते हैं अपना एटीएम में, ठीक है, हम लोग एटीएम को एग्जांपल लेके चलते हैं, तो एक वहां पे दिखाता है ना कभी कभी कि हाय सानिया एंटर योर पिन, या हाय आपका अमित एंटर योर पिन, ऐसे करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है? तो वो तो हाय के बाद वाला पार्ट तो बार बार चेंज होता है, बाकी मैसेज तो सेम रहते हैं, करेक्ट। तो नेम के अंदर वो कहीं से वैल्यू हो सकता है आपके कार्ड जाने के बाद वो नेम के अंदर कुछ वैल्यू आ गया उसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद फिर वो नेम का वैल्यू आपको प्रिंट कर दिया। आई बात समझ में? एक लाइव एग्जांपल समझ में आया कैसा होता है? ऐसा तो नहीं कि मतलब हम जा रहे हैं कार्ड लेके तो हमको भी दिखाएगा हाय सानिया, हमने तो देख के डर जाऊंगा ये कार्ड किसका है कि नहीं? तो बिल्कुल ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको अपने कार्ड के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो जब भी होगा तो याद रखो कि हम लोग कभी भी कुछ करना है तो इसके लिए ये करना है, ठीक है। तो इसको पहले स्टोर कर लेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। चलो अभी तक हम लोगों ने ये देखा, अब नाउ आई वांट टू चेंज दिस ईयर आल्सो, ईयर आल्सो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ईयर ये क्या है, नंबर है आपका, ये नंबर है। Yes. What is 23? 23 is a number, और नंबर के लिए कौन सा टाइप? इंट। Integer. इंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे इंट
अभी क्योंकि वो एज है तो हम लोग एज लिख लेते हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट टू फॉलो द कन्वेंशन फ्रॉम डे वन। हम लोग डे वन से कन्वेंशन फॉलो करना चाहते हैं। व्हाट कन्वेंशन? कि अगर इंडस्ट्री में जाते हैं और हम लोग वहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिखते हैं तो दे शुड अंडरस्टैंड कि हाँ बच्चा वर्क करके आया है, कहीं से काम करके आया है, क्योंकि वो तुम्हारा देख के समझ जाएंगे अरे तो वेरिएबल का नाम अभी ABCD लिखता है। बहुत है ना, अगर हम ABCD लिखेंगे दैट विल वर्क फाइन, ऐसा नहीं कि नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो आपको वहां शो करना है कि यस आई एम मैच्योर इनफ, ठीक है, कि मैं इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी नाम लिखेंगे ना एंड कभी भी कुछ भी, ठीक है तो हमको ये इसी तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एज अभी हम लिख ले रहे हैं, चलो 24 कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया। और ये जो है यहाँ पे सब कुछ जगह एक ही बार हम चेंज कर देते हैं, एज कर देते हैं। ठीक है, एज मेरा वेरिएबल है, हाँ कि ना? Yes. वेरिएबल है, और वेरिएबल अगर बीच बीच में आता है तो क्या करते हैं? आगे पीछे प्लस ऐड करेंगे। दोनों आगे साइड पीछे प्लस। प्लस, और आगे पीछे प्लस, और ये देखो इन्वर्टेड कॉमा भी पहले क्लोज होना चाहिए, इन्वर्टेड ओपन कॉमा क्लोज। प्लस प्लस इन्वर्टेड कॉमा। तो बस इसको ऐसे ही जो है बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, 2 इन्वर्टेड कॉमा ले लिए, बीच में प्लस प्लस, और बीच में क्या आ जाएगा? एज। Age. ठीक है, अब बस इसी को कॉपी करके हर जगह 23 की जगह रिप्लेस कर देते, Ctrl+C, आई एम रिप्लेसिंग इट हियर, Ctrl+V। ठीक है, लेट मी डू इट दिस वे, इसको हटा देते हैं, वो एक्चुअली से दूसरा चीज समझ ले रहा है। ठीक है, Ctrl+V। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे ये एज जो 23 लिख कर आ रहा था अभी तक में, अब ये 24 लिख के आएगा। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज, एंड देन जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलो हो गया। देखो, हाय माय नेम इज सानिया, सानिया इज 24 years old। ठीक है, हाँ। क्लियर नाउ? ठीक है, डॉट वी आर ऑन टाइम 9:30 इट इज। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, एंड यू विल बी गेटिंग कैप्सूल नंबर 2। ठीक है, जिसमें एक प्रोग्राम होगा जो कि रिलेटेड टू योर ये होगा, जहाँ पे आपको अपना नेम डालना है एंड एज डालना है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग करेंगे, वो एक प्रोग्राम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू जस्ट सेंड इन द डेफिनेशन फॉर योर क्लास ऑब्जेक्ट एंड नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल। दीज आर गोइंग टू बी योर 4 क्वेश्चंस। तो आपको कैप्सूल बहुत जल्दी अभी मिल जाएगा। ठीक है, so just dictating you this particular thing, so exactly this is how we do the things. अभी तक किसी को कोई भी डाउट? लेट मी जस्ट चेक with each one of you. Sania, any doubts? No, no, nothing. Nothing, everything is clear now? One thing, वो जो आपने बताया था ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और फोन वाला एग्जांपल बताया था, अगर फोन टेकिंग फोन एज एन एग्जांपल तो वो क्या होगा? क्लास। अच्छा, आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप फोन और ये सब ले रहे हो। एक्चुअली देयर इज सम मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटरफेस और बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो दोज कम अंडर देयर। तो अभी सिर्फ जितना समझना था वो पार्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो वो हम लोग जब इंटरफेस पढ़ेंगे ना विल जस्ट हैंडल, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे आप बोल सकते हो कि एक मेल का हो गया, एक फीमेल का हो गया, देन मेल और फीमेल क्या है? इट इज जस्ट अ वर्ड, राइट? और ह्यूमन बीइंग भी एक वर्ड है। एंड देन मेल के अंदर फिर मतलब जब मान लो 5 से अमित, राम, श्याम ये हो गए, और फीमेल के अंदर आपका हो गया रानी, और मतलब और भी अदर नेम्स होते हैं। ठीक है, वो हो गए, तो वो क्या होंगे? करेक्ट, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। नो नो, लाइक उस वक्त जाकिया सेड ना कि वो फोन क्लास होगा और उसके नीचे जो भी आपने लिखा था सैमसंग एप्पल वो ऑब्जेक्ट। तो ये सारे तो एक एट्रीब्यूट मतलब फोन सी है, फोन क्लास हो जाएगा और उसके सारा अलग अलग वो ऑब्जेक्ट्स। सैमसंग को देखा है कभी? नहीं। देन जस्ट सिंपल डेफिनेशन, जिस चीज को देखा दैट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट। ओके ओके। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। No. शकील, एनी डाउट्स? नो। थैंक यू। प्रसन्नजीत? नो फैजान। थैंक यू। आमिर? एनी डाउट्स? ना ना। ओके। हसन, एनी डाउट्स? नो सर। थैंक यू। शफाक, एनी डाउट्स? No, thank you. आसिफ, एनी डाउट्स?
प्रोग्राम जो लिखे ना वो तो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास हम थे ना तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके, यू कैन जस्ट रेफर टू आवर वीडियो ऑन द यूट्यूब, ठीक है, एक बार आप देख लो, लास्ट के भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने हैंडल किया था, सो उसी के बेसिस पे है, ठीक है, तो एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो वी कैन कनेक्ट पर्सनली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वी हैव सम मोर पीपल। ओसामा, डू यू हैव एनी डाउट्स? No. Okay, thank you. Then we have Sharik, any doubts? नहीं भाई। Okay, Zakia, anything? Okay, so sorry, we are actually done with today's session. I hope you all got everything whatever was taught here, and capsule will be sent in shortly on your WhatsApp, and you can just complete everything and send it as soon as possible. And we will have our next class on Thursday at this very same time, 8:30. It will go up to 9:30. And yes, that is all from my end for today. So if anybody is having any doubt, they can ping me personally, check with me personally, and yes, so let's close if nobody is having anything to say. Thank you for your time. Have a good night. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, Fazan.